Welcome, my dear students of grade 6. We have done the 7th chapter of history, that is Great Thinkers and Growth of New Ideas. In this chapter, we have studied about the later Vedic period when there was a change in the religious, and there came some new thinkers like Buddha and Jain, Mahavir Jain. And we have studied about the teachings of Mahavir Jain and teachings of the Mahatma Buddha. And at that time, people wanted to get rid of the class rigidity and the religious rituals that are become very costlier for them at that time, and they want the peace of mind. At that time, the new ideas and new thinkers came into existence, that is the teachings of Mahatma Buddha and teachings of Mahavir Jain. And today in this video we will do the bag exercise and the question answer of this chapter. Let us start today's work. History chapter 7, Great Thinkers and the Growth of New Ideas. First of all, we will do the multiple choice questions. The first is, we know about great thinkers and new ideas from, we have different options for that is Upanishad, Buddhist text, the Jain text, and all of these. And the right answer for this is, that is all of these. Means the answer of this question, we know about the great thinkers and new ideas from all these sources, that is Upanishad, Buddhist text, Jain text. The answer is all of these, the fourth option. Next, supreme knowledge which Buddha got after deep meditation. डीप मेडिटेशन के बाद बुद्धा, महात्मा बुद्धा को कौन सी नॉलेज मिली? दैट इज मोक्ष, एनलाइटनमेंट, निर्वाण और अवेकनिंग. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दैट इज enlightenment. Next, the followers of Buddha sect Hinayana believed only in the, जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे दैट इज हिनयाना, वो किस में बिलीव करते थे? मिडल पाथ, रिचुअल्स, अहिंसा और ऑस्टेरिटी. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिडल पाथ. The follower of the Buddha, that are the sect Hinayana, believe in the middle path. That is the teachings of the Mahatma Buddha. Next is, the relics of Buddha were preserved. Relics means जो बुद्धा से रिलेटेड उनकी बॉडी के रिमेन्स हैं वो कहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं? विहारास, चैत्यास, स्तूपास, मोनेस्ट्री. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्तूपास. Clear that? The next is our true false. The first is, महावीर was 25th तीर्थंकार. इसमें बोल रहा है कि महावीर जो थे 25th तीर्थंकार थे, तो आंसर इज फॉल्स. तो आंसर, करेक्ट आंसर इज 24th. महावीर जैन was 24th तीर्थंकार. नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 100 उपनिषद. आंसर इज ट्रू. तो टोटल उपनिषदास 108. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू. बिंबिसारा वाज नोन एज जिना. बिंबिसारा को हम जिना के नाम से जानते हैं? नो. आंसर इज फॉल्स. महावीर जैन इज नोन एज जिना. नेक्स्ट, मंडूका इज द मेजर वेदा. तो आंसर इज फॉल्स. मंडूका इज नॉट द मेजर वेदा. ऋग वेदा इज द major Veda. Manduka is Upanishad. Next, again true false. Upanishad means to sit near the teacher. उपनिषद का मीनिंग क्या होता है कि टीचर के पास, मीन्स गुरु के पास बैठकर ज्ञान हासिल करना. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 118 उपनिषद. तो हमारे पास टोटल उपनिषद कितने हैं? 118. तो आंसर इज फॉल्स, because we have Upanishad, that is 108. Mahavir was the fourth Tirthankar of Jainism. Again,
This statement is false because Mahavir was 24th Tirthankar. Next, according to Buddha, the goal of life can be achieved through Triratna. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा के अकॉर्डिंग हम लाइफ का जो गोल है वो एम हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ द पाथ त्रिरत्ना. तो आंसर इज फॉल्स. दिस त्रिरत्ना इज गिवन बाय महावीर जैन, नोट बाय बुद्धा. बुद्धा गिवन द पाथ ऑफ 8-fold path. Next we have the very short answer, question answer. The first question is name the 4 great sides of Buddha. बुद्धा ने जो 4 sides बताई थी जिसके बाद बुद्धा की लाइफ चेंज होगी वो कौन सी थी? द ओल्ड मैन, द सिक मैन, द डेड मैन एंड द ascetic. These were the great 4 sides that seen by Buddha, that changed the life of Buddha. Next question, what is the 8-fold path और अष्टांगिका मार्ग? 8-fold पाथ क्या है और या फिर अष्टांगिका मार्ग कौन सा है? तो आंसर इज द 8-fold पाथ और अष्टांगिक मार्ग इज राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंटेम्पलेशन और द कंसंट्रेशन. These are the 8-fold path given by Buddha. Next is define monastery. Next question है define monasteries, name few of them. Monasteries क्या होती हैं? कुछ monasteries के नाम बताएं. तो आंसर इज monasteries are the place where monks और भिक्षुस lives. Monasteries क्या होती हैं? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर monks, बुद्धिस्ट monks या फिर जैनिस्ट monks या भिक्षु रहते हैं. Some famous monasteries in India are Hemis Monastery in Ladakh, Tiksey Monastery in Ladakh, Tabo Monastery in Himachal Pradesh. These are the famous monasteries. Next question, what is meant by Sangh? Sangh क्या होता है? Buddhist monks stay together and travel around the country spreading the teachings of Buddha. जो बुद्धिस्ट monks होते हैं एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं और एक साथ ही ट्रैवल करते हैं. इस ग्रुप को हम संघ बोलते हैं. क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द उपनिषद? उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मीन्स टू सिट नियर द टीचर और गुरु. उपनिषद का अगर लिटरली मीनिंग देखें तो क्या होता है कि गुरु के पास बैठना. इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ नॉलेज given by the teachers to their pupils sitting at the feet often through questions and answer. तो इसमें क्या होता है उपनिषद में जो टीचर्स, pupils मीन्स अपने स्टूडेंट्स को जो भी सिखाता है उसका रिकॉर्ड है और ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक से उनको सिखाया जाता है. इट इज़ द ओरल टीचिंग टू द स्टूडेंट्स. Next is our short type question answer. The first are what are the 4 noble truths preached by Buddha? बुद्धा ने जो 4 ट्रूथ बताए हैं, नोबल ट्रूथ, वो क्या है? तो फर्स्ट इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स. द कॉज ऑफ दिस sorrow is desire. Getting rid of desire, wants will lead to peace and end of sufferings. We can get rid of suffering by following the noble 8-fold path and right living. तो 4 नोबल ट्रूथ जो बुद्धा ने बताया वो क्या है कि जो लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग मीन्स दुखों से भरी हुई है और इन सब दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं. गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर, अगर इन डिज़ायर और वांट से हम छुटकारा मिल जाता है, गेटिंग रिड मतलब हम छुटकारा मिल जाता है तो हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं और जो सफरिंग्स सारे दुख खत्म हो जाएंगे. और इन दुखों से निकलने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ 8-fold path that was given by Mahatma Buddha. Next question is explain the Triratna principle preached by
महावीरा ने जो त्रिरत्न प्रिंसिपल बताया है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू महावीर द गोल ऑफ लाइफ कैन बी अचीव थ्रू त्रिरत्न ऑफ द थ्री जूल्स। त्रिरत्न या फिर हमें थ्री जूल्स कहते हैं, वो क्या है? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शंस। नेक्स्ट, व्हाट डिड बुद्धा मीन बाय मिडल पाथ? जो बुद्धा ने मिडल पाथ बताया है वो क्या है? बुद्धा डिक्लेयर दैट बाय लीडिंग अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन और बाय फॉलोइंग द नोबल एटफोल्ड पाथ वन कैन अटेन पीस एंड हैप्पीनेस। अगर हम मिडल पाथ को फॉलो करते हैं तो हमें पीस और हैप्पीनेस, शांति और खुशी मिल सकती है। ही सेड दैट पर्सन शुड नीदर लिव इन ए ग्रेट लग्जरी, मीन ज़्यादा हमें आरामदायक ज़िंदगी भी जीनी नहीं चाहिए और ना ही हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और दुख सहने चाहिए। लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ वुड हेल्प अ पर्सन टू अटेन मोक्ष और निर्वाण। हमें हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ को व्यतीत करना है जिससे हम मोक्ष या फिर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड आउट एंड राइट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये दोबारा लिखा गया है, इट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट सिमिलैरिटीज, बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू प्रिंसली फैमिलीज। दोनों ही गौतम बुद्धा और महावीरा प्रिंसली फैमिली को बिलोंग करते थे, दोनों ही राजकुमार थे। बोथ डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दोनों ही भगवान की एग्जिस्टेंस पर प्रश्न खड़ा किया है, उनको मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि सब जगह ही भगवान है, उनका कोई रूप या आकार नहीं है। बोथ हैव एक्सेप्टेड द थ्योरीज ऑफ कर्म, रीबर्थ एंड मोक्ष। और दोनों ने कौन सी थ्योरीज को अपनाया है कि कर्म, हमें अपना कर्म करना चाहिए, रीबर्थ, आत्मा का दोबारा जन्म होता है, और हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। डिससिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों के बीच में? द फर्स्ट, जैनिज्म बिलीव इन सॉइल बट द बुद्धिस्ट डिड नॉट बिलीव इन सॉइल। जैनिज्म आत्मा में विश्वास करते हैं, बुद्धिस्ट आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। जैनिज्म prominence was given to followers, in Buddhist prominence was given to संघ and monks। जैनिज्म में मेन जो इम्पोर्टेंस दी जाती है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको देते हैं, पर बुद्धिस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंस किसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? संघ और मॉन्क्स को, कि सभी जो बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उन्हें मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू उपनिषद हाउ कैन वी अटेन द मोक्षा? उपनिषद के अकॉर्डिंग हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उपनिषद आर बुक्स ऑफ फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल लर्निंग। दे कंटेन द फिलोसफी ऑफ टीचिंग्स एंड आइडियाज़ ऑफ मैनी रिलीजियस टीचर। उपनिषद क्या है? बुक्स हैं जिसमें अलग अलग टीचिंग्स हैं, अलग अलग आइडियाज़ कंटेन किए गए हैं। उपनिषद स्टेट दैट आत्मा कैन अटेन मोक्षा, ultimately liberation from cycle of death and rebirth after its union with Brahma. It can be achieved through bhakti, meditation and self control। कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से मीन्स ब्रह्मा से मिल जाएगी अगर हम भक्ति करते हैं, मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, राइट द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग्स क्या हैं? The main teachings of Buddha are life is full of sufferings, cause of this sorrow is desire, getting rid of desire and wants will lead to peace and end of suffering. We can get rid of sufferings by following the noble eightfold path and right living. Buddha declared that by leading a life of moderation or by following the eightfold path, one can attain peace and happiness. और बुद्धा की जो 4 टीचिंग्स हैं और उनके अकॉर्डिंग अगर हम बैलेंस लाइफ को फॉलो करते हैं तो हम पीस और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेजर प्रिंसिपल ऑफ
जैनिज्म। जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? द मेजर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म आर अहिंसा। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग इंटेंशनल एज और अनइंटेंशनल हार्म टू अनदर लिविंग क्रिएचर्स। हमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जानबूझकर और ना जाने अनजाने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट, सत्य। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पीपल शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सो दैट नो हार्म इज डन टू अदर्स। हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट, असत्य। वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड वट एवर इज अर्न ऑनेस्टली। असत्य मीन्स हमें कोई गलत रास्ते पर नहीं चलना है, जो भी हमारे पास है हमने ईमानदारी से कमाया है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य। द प्रिंसिपल रिक्वायर पीपल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देमसेल्फ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। This principle requires people to observe detachment from people, place and material things. These are the principles of the Jain religion. So these are the back exercise and the question answer of this chapter 7, history, that is the great thinkers and the growth of new ideas. Okay students, you have to learn all these question answers and the back exercise and also write in your notebooks. Thank you for watching this video.